Hello friends, welcome to IFS. This is Manoj, and in the last lecture of countable and uncountable set, we have seen some definitions of countable set, uncountable set, a finite set, similar sets. After that, we have seen some properties of countable and uncountable sets. Okay, तो हमने कुछ कार्डिनल नंबर्स भी डिफाइन किए थे, कार्डिनलिटी ऑफ n, कार्डिनलिटी ऑफ r, that is aleph naught and continuum. And after that, we have seen some examples which are related to the countable and uncountable sets. Okay, so in this lecture once again we will see some another properties of countable and uncountable set, and we will take some examples on that properties. So there are two types of set. The first one is a empty set and second one is non-empty set. Okay, so if the set is empty, then it is a countable set. Vacuously it is a countable set. And if the set is non-empty, then again there are two types of this non-empty set. The first one is a finite set and the next one is a infinite set. So once again, if the set is a finite set, then again it is a countable set. And if the set is infinite set, then again we have two partition of that set. The first one is a countably infinite and the next one which is not a countably infinite. So if the set is countably infinite, then again we can say that set A should be equal is a countable set. And if the set is not countably infinite, so in that case that A should be a the set should be a uncountable set. Okay, so अगर कोई सेट फाइनाइट भी नहीं होता, काउंटेबली इनफाइनाइट भी नहीं होता, तब वो सेट क्या बन जाएगा? अनकाउंटेबल सेट बन जाएगा. दैट मीन्स उसके जो एलिमेंट्स है उसको हम काउंट नहीं कर सकते. राइट, so now we will see some properties. The first property is if cardinality of A is equals to n, then power set of A. What is power set of A? That is the set of all elements, the set of all subsets of a given set A. That means कोई भी अगर हमें set दिया है A set, I will take my set A, that is I will just take three elements of a given set. The power set of A that is equals to set of all elements, set of all subsets of A. Okay, तो इसके जो सबसेट बनेंगे वो क्या बनेंगे? Like that. Okay, it also contains sets which has cardinality 2. It also contains set A itself and it also contains an empty set. Okay, so 5 denotes as empty set. So जो पावर सेट होगा उसकी जो कार्डिनलिटी रहेगी. ओके, तो अगर कोई फाइनाइट सेट रहता है जिसकी कार्डिनलिटी अगर n रहती है, तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? दैट विल बी इक्वल्स टू 2 to the power n. Now the next one, the countable union of countable set is uncountable. So if I have a countably many countable sets, if I have a countably many countable sets, and if I am taking its union, then the new set will be our countable set. Okay, so let us take, I have a countable set Sn. The Sn will be countable for all natural number. Okay, so Sn is a countable set. I am taking Sn is my countable set for all natural numbers, and I am taking its union, the union where n runs from 1 to infinity. This is my new set. I will call it as my S. Okay, so this really is again a countable set. यहाँ पे जो मेरा काउंटेबल जो सेट है वो मेरा Sn है. देयर आर काउंटेबली मेनी काउंटेबल सेट्स. तो जो काउंटेबल सेट जो है मेरे वो Sn है, एंड आई एम टेकिंग अ काउंटेबल यूनियन, दैट इज माय काउंटेबल यूनियन. सो आई एम टेकिंग अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, जिसका जो काउंटेबल जो नया सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा? हमारा काउंटेबल सेट बन जाएगा. The next one is a set is infinite if and only if it contains countably infinite subset. तो कोई भी सेट अगर हम लेते हैं जो कि इनफाइनाइट है, तो उसमें हमें काउंटेबली इनफाइनाइट एक सबसेट मिलेगा. और किसी भी सेट में अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट मिलता है तो जो गिवन सेट होगा वो भी इनफाइनाइट सेट बन जाएगा. द नेक्स्ट वन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ऑन टू फंक्शन फ्रॉम countable set to uncountable set. So if I am taking my first set is set of natural number, that is my countable set, and the next one is uncountable set. From countable set to uncountable set, and I am taking some function from set of countable set to uncountable set, then this f must be a नॉन ऑनटू फंक्शन. वो जो f होगा वो कभी भी ऑनटू फंक्शन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर f ऑनटू फंक्शन होता है, f अगर ऑनटू फंक्शन होता है, सो इन दैट केस the domain is equals to range set.
Okay, so in that case the domain will be equals to range set. So कोडोमेन का जो भी जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कोडोमेन की जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट एक प्री इमेज चाहिए, राइट? बिकॉज इट इज ऑन टू फंक्शन, एफ इज ऑन टू फंक्शन, सो कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए एटलीस्ट एक, इट मे हैव मोर देन वन, बट एटलीस्ट एक प्री इमेज तो चाहिए. बट हमारा कोडोमेन का सेट अगर अनकाउंटेबल होता है तो जितने एलिमेंट्स कोडोमेन के हो उतने ही प्री इमेज, एटलीस्ट उतनी प्री इमेज हमें डोमेन में चाहिए. दैट मीन्स डोमेन का एलिमेंट की जो कार्डिनलिटी हो एटलीस्ट कोडोमेन के कार्डिनलिटी इतनी चाहिए, राइट? तो डोमेन की जो कार्डिनलिटी जो होगी वो एटलीस्ट कोडोमेन की कार्डिनलिटी होगी, इतनी चाहिए. तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी अगर अनकाउंटेबल होती है एंड डोमेन की कार्डिनलिटी अगर काउंटेबल होती है तो वो पॉसिबल नहीं होगा, राइट? So if I am taking a function f from a to b, if I am taking a function from a to b, where f is on to, okay, so if I am taking a function f from a to b and f is on to, so in that case the cardinality of domain must be greater equal cardinality of codomain, right? So अगर on to function होता है तो cardinality of a must be greater equal cardinality of b. But the next one, there does not exist any one-to-one function from an uncountable set to countable set. So if I am taking a function f from uncountable set to countable set, uncountable to countable means what? जो डोमेन जो होगा वो अनकाउंटेबल होगा टू काउंटेबल, दैट मीन्स जो कोडोमेन जो होगा वो काउंटेबल बन जाएगा. तो इन दैट केस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शन. क्यों वो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा? क्योंकि अगर मैं लेता हूँ कि फंक्शन वन वन है, अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि वो जो फंक्शन है वो वन वन है, तो इन दैट केस जो हमारे डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उनको एक इमेज रहेगी, राइट? और किसी भी दो एलिमेंट्स को हम एक इमेज नहीं दे सकते. दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए दो डिफरेंट इमेज ही चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारा वन वन फंक्शन है. तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट को दो डिफरेंट इमेजेस अगर चाहिए तो जितने एलिमेंट्स हमारे डोमेन में है एटलीस्ट उतने एलिमेंट्स हमारे कोडोमेन में चाहिए. दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग अ फंक्शन f फ्रॉम a to b and f is my 1 1, okay, so in that case cardinality of a is less equal cardinality of, तो अगर मैं यहाँ पे r की कार्डिनलिटी लूंगा और यहाँ पे अगर मैं n की कार्डिनलिटी लूंगा, इट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली, क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ r इज मच बिगर देन कार्डिनलिटी ऑफ n. क्योंकि कार्डिनलिटी ऑफ r क्या है? दैट इज कंटिन्यूम एंड कार्डिनलिटी ऑफ n इज अलिफ नॉट. हमने लास्ट लेक्चर में वो देखा था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार वो लेक्चर भी देख लीजिए कि वहाँ पे जो कार्डिनलिटी की जो अलजेब्रा हमने डिफाइन किया है, कंटिन्यूम क्या रहता है, कंटिन्यूम का अगर हम n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो वो क्या रहता है, 2 टू द पावर कंटिन्यूम क्या रहता है, 2 टू द पावर अलिफ नॉट क्या रहता है, कंटिन्यूम एंड अलिफ नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, वो हमने सारे अलजेब्रा जो हमने वो लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया है. आप एक बार वो लेक्चर भी देख लीजिए. ओके, तो इन दैट केस दिस इज नॉट ट्रू. कार्डिनलिटी ऑफ r इज नॉट लेस इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ n. सो इसकी वजह से वो जो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वन वन फंक्शन फ्रॉम अनकाउंटेबल सेट टू countable set. Okay, now let us see some example. The first one is if let's set a be any set, let's set a be any set, that means जो set होगा वो it may be a empty set, it may be a finite set, it may be countably infinite set, or it may be uncountable set. Okay, so now let p of a be the power set of a, जो कि हमने डिफाइन किया था p of a, that is a power set, that is the set of all subsets of a, that is my p of a. P of a is what? P of a is equals to b. B is what? B is a subset of a. Set of all, that means all b such that b is the subset of a. तो P of a में empty set भी आ जाएगा and P of a में whole a भी आ जाएगा. Okay, then which of the following is like are true about the set P of a? तो पावर सेट जो है उसके बारे में हमें देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो फर्स्ट वन, P of a is a empty for some a. Okay, तो P of a की कार्डिनलिटी क्या रहती है? If a is a finite set, कार्डिनलिटी ऑफ P of a is 2 to the power n, right? So if कार्डिनलिटी ऑफ a is equals to n implies कार्डिनलिटी ऑफ P of a क्या होती है? 2 to the power n. तो अगर n इंक्रीज होता है तो 2 to the power n इंक्रीज हो जाएगा. दैट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ P of a भी क्या बन जाएगी? इंक्रीजिंग बन जाएगी. तो जो कार्डिनलिटी ऑफ P of a जो है वो सबसे कम कब आएगी? जब हमारी कार्डिनलिटी ऑफ a सबसे छोटी होगी. So I will take my a is my empty set. Okay, I am taking a is my empty set. So in that case, what is our power set? Or we will see that
cardinality of A in that case, that will be what? 0, right? In that case cardinality of A जो है वो क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी, that is a finite. Therefore cardinality of P of A, that will be equals to 2 to the power n, that is 2 to the power 0, and that is equals to 1. तो P of A जो होगा उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट होगा. P of जो है P of A, उसमें क्या होगा? एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा? दैट इज अ एम्प्टी सेट. P of A contains an empty set. ओके, तो P of A जो होगा वो एक सेट कंटेन करेगा जो कि एम्प्टी सेट है. तो P of A इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट. P of A इज एम्प्टी सेट नहीं है, लेकिन P of A में एक एम्प्टी सेट है, राइट? तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा. सो P of A contains at least one element. But the next one, P of A is finite for some set A. So if I am taking any finite set, then the cardinality of P of A will be 2 to the power n. That is again a finite, so P of A will be a finite, right? So P of A is finite for any finite set A, right? So P of A is finite for any finite set A. Okay. Now the next one, P of A is a countable set for some A. Okay. तो अगर मैं सेट A अगेन फाइनाइट लूंगा, A अगर मैं फाइनाइट लूंगा, तो P of A क्या बन जाएगा? P of A क्या बन जाएगा? दैट इज अगेन अ फाइनाइट सेट, राइट? सो अगर A अगर फाइनाइट लेता तो P of A क्या बन जाएगा? फाइनाइट बन जाएगा, एंड दैट विल बी अगेन अ काउंटेबल सेट, राइट? सो P of A जो, क्योंकि एवरी फाइनाइट सेट इज अ काउंटेबल सेट, राइट? सो एवरी फाइनाइट सेट क्या होता है? काउंटेबल सेट होता है. तो P of A अगर फाइनाइट भी होता है तो वो अपने आप काउंटेबल भी बन जाएगा. तो इफ आई एम टेकिंग A इज अ फाइनाइट सेट, देन P of A इज अ फाइनाइट एंड दैट इज काउंटेबल. So if A is finite, then P of A is countable set. So for any finite set A, P of A is a countable set. And if I am, the last one is P of A is uncountable for some A. और P of A uncountable कब होगा? हमें पता है कि जो कार्डिनल नंबर हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफाइन किया था उसमें प्रॉपर्टी थी एक, वो प्रॉपर्टी क्या थी? कि 2 to the power अलेफ नॉट इक्वल्स टू कंटिन्यूम. वो प्रॉपर्टी क्या थी? 2 to the power अलेफ नॉट इक्वल्स टू कंटिन्यूम, राइट? और हमारा पावर सेट की जो कार्डिनलिटी जो रहती है वो क्या रहती है? द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट विल बी इक्वल्स टू 2 to the power n when cardinality of A is equals to n. ओके, तो cardinality of A is equals to अगर n रहती है तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट क्या रहती है? 2 to the power n. तो अगर मैं ये अगर A सेट जो है वो मैं अगर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट लूंगा जिसकी कार्डिनलिटी अलेफ नॉट है, A अगर मैं काउंटेबली इनफाइनाइट सेट लूंगा जिसकी कार्डिनलिटी अलेफ नॉट है, तो वो जो काउंटेबली इनफाइनाइट जो सेट में लूंगा उसका पावर सेट जो बनेगा उसकी कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? 2 to the power अलेफ नॉट, एंड दैट इज माय कंटिन्यूम. So if I am taking any countable infinite set, I am taking my A is equals to set of natural number, that is my set A, then cardinality of A is aleph naught, right? In that case cardinality of A is aleph naught implies cardinality of P of A will be equals to 2 to the power aleph naught, and that is equals to continuum. तो पावर सेट की जो कार्डिनलिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी? That is equals to cardinality of R, and therefore the set will be uncountable set. तो P of A जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? Uncountable set for set of natural numbers. So the option 4 is also our correct option. Okay. So next example is, let S is equals to x comma y, that is the order tuple x comma y, such that that means जो आगे की जो कंडीशन होगी वो एक्स वाई सेटिस्फाई करने चाहिए. ओके, सच दैट के आगे की जो कंडीशन होगी वो जो एस वाई एक्स कॉमा वाई होंगे वो सेटिस्फाई करेंगी. वो कंडीशंस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर. वो कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x or y belongs to set of rational number. So either x belongs to set of rational number or y belongs to set of rational number or both belongs to set of rational number. Okay,
but it is not true that x and y both belongs to set of irrational number. ये जो given set है उसमें x and y दोनों के दोनों हम set of irrational number से नहीं ले सकते. okay? The set is, जो set होगा वो set क्या होगा, s is equals to xy such that x square plus y square is equals to 1 by n square. okay, and n belongs to natural number, comma x belongs to q or y belongs to, okay, so this is my set yes. Now if I am taking or fixed n belongs to natural number, I will take my Sn is equals to x comma y such that x square plus y square is equals to 1 upon n square, and x belongs to q और y belongs to q. okay, तो यहाँ पे मैंने जो गिवन सेट यस था वहां का n मैंने निकाल दिया है. वहां का n क्या था, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर था, बट यहाँ पे मैंने एक फिक्स n लिया है. यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक फिक्स n लिया है. सो वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट. तो मैंने फिक्स n लेके मैंने काउंटेबल सेट बना दी है. तो वो जो हमारा यस जो बनेगा वो यस क्या बनेगा, दैट इज अ यूनियन ऑफ यस n सच दैट n रन्स फ्रॉम 1 to infinity. तो मैंने जो यस था वो डिफाइन कैसे किया, यस n की हेल्प से किया. वो मेरा यस n क्या है, यस n इज अ x comma y such that x square plus y square is equal to 1 upon n square, and x comma either x belongs to rational number or y belongs to rational number. okay, so वो जो मेरा यस n था वहां पे मैंने जो x n जो मेरा था वो मैंने फिक्स कर दिया. दैट मीन्स s1 again s2 again s3, these are my all sets and I am taking union of all that sets. so my given yes, the given set जो है मेरा yes, वो मैंने लिख दिया काउंटेबल यूनियन ऑफ यस n. बट नाउ वी डोंट नो अबाउट यस n क्या है ये हमें पता नहीं है. यस n अगर काउंटेबल हो जाता है then we can say that the countable union of countable set is countable and therefore our yes is countable. But if Sn is not countable for some n, at least for one n के लिए भी अगर Sn अगर countable नहीं रहता तो our yes will be a uncountable set, right? So now the given is, condition is what, x square plus y square is equals to 1 upon n square. This is my given condition, x square plus y square is equals to 1 upon n square. Now if I am solving this, then it will be equals to x square is equals to 1 upon n square minus y square, right? So x is equals to plus or minus square root of 1 upon n square minus y square. okay, so this is my x for given y. This is my x for given y. That means जो मैंने x था, or we can also say that I will take this, here is my x and here is my y. okay, so this will be y and this will be x. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, y is a function of x. okay, so y जो होगा मैंने x के रिलेटेड लिया. अगर मैं x चेंज कर देता हूँ तो मेरा y भी क्या बन जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट. सो दिस इज दैट मीन्स व्हाट, y इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली. तो मैंने y को क्या कर दिया, x के फॉर्म में लिख दिया. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, x एंड y पे कंडीशन क्या है, हमने n तो फिक्स कर दिया. हमारा n का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि n को मैंने काउंटेबल इनफाइनाइट की फॉर्म में लिख दिया है. बट अब डिपेंड करता है कि x एंड y कहाँ से. तो अगर x अगर रैशनल नंबर से होता है, नाउ if my x belongs to rational number, if my x belongs to rational number, then for each x belongs to q, there we have two values of y, right? so अगर मेरा x रैशनल नंबर से बिलोंग्स करता है तो इन दैट केस ये जो x होगा वो मेरा एक रैशनल नंबर होगा. तो इन दैट केस y की वैल्यू क्या होगी, दैट द स्क्वायर रूट एंड इट्स नेगेटिव. ओके, सो फिक्स वैल्यू ऑफ x के लिए मेरा जो y होगा वो दो वैल्यू लेगा. दैट मीन्स x अगर q होता है, x की कार्डिनलिटी अगर q होती है तो y की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी, दैट इज ट्वाइस q, राइट. सिमिलरली अगर y अगर रैशनल नंबर से बिलोंग्स करता है, आई विल सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x. I will solve this equation for x and it will be x is equals to plus or minus square root of 1 upon n square minus x square minus y square actually, because it is a, in that case x will be a function of y. okay, so in that case if my y belongs to rational number then x will have
two values. For each y belongs to rational number, x will have two values. Okay, तो वो जो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा xy जो प्रोडक्ट बनेगा, it belongs to either q cross twice q, or that means what, the cardinality, उसकी cardinality क्या बन जाएगी, I will take directly cardinality of that set will be either q cross 2q, it is of the from q cross 2q, or twice q cross q. इस फॉर्म में वो एलिमेंट्स आएंगे. दिस इज ऑफ द कार्डिनलिटी टाइप. ओके, तो वो जो होगा दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म में वो आ जाएगा, जिसमें जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइनाइट है. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू क्रॉस ट्वाइस क्यू और ट्वाइस क्यू क्रॉस क्यू. तो for each n and either x belongs to q or y belongs to q, either x belongs to q or y belongs to q, for each n, yes n will be our countable set. It is also not a empty set, because we can take if I am taking x is equals to 1 by 4, if I am taking x is equals to, I will take x is equals to 1 half. So in that case 1 upon n square, for n is equals to 1, for n is equals to 1, it will be 1 upon 1 minus 1 upon 4, that will be equals to 3 upon 4, right? तो ये सेट एम्प्टी भी नहीं होगा, ये सेट फाइनाइट भी नहीं होगा. फाइनाइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम x काउंटेबल ही नहीं सेट ले सकते, क्योंकि x कहाँ से बिलोंग्स करता है, x बिलोंग्स करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर से. तो ये सेट एम्प्टी भी नहीं होगा, एंड इट ऑल्सो नॉट बी अ फाइनाइट सेट, क्योंकि x अगर रैशनल नंबर से बिलोंग्स करता है तो हम इनफाइनाइटली मिनी रैशनल नंबर ले सकते हैं यहाँ पे. तो अगर हम इनफाइनाइटली मिनी रैशनल नंबर लेंगे तो वो जो सेट बनेगा एक्स वाई का, जो ऑर्डर टपल बनेगा, वो भी इनफाइनाइटली मिनी बनेगा. सो तो फाइनाइट भी नहीं रहेगा. तो जो रहेगा इट इज आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. तो जो हमारे एलिमेंट जो बनेंगे वो किस फॉर्म में आएंगे? जो एक्स अगर रैशनल नंबर से बिलोंग्स करता है तो वाई, तो उनकी कार्डिनलिटी अलिफ नॉट अगर होगी, तो वो जो दूसरा होगा वाई, उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? ट्वाइस अलिफ नॉट. ओके, तो एक्स की कार्डिनलिटी अगर अलिफ नॉट होती है और उसकी दूसरी की कार्डिनलिटी क्या बन जाएगी? ट्वाइस अलिफ नॉट. एंड दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट. वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनेगा वो टू एलिमेंट्स, टू सेट के लिए बनेगा, क्यू क्रॉस टू क्यू और ट्वाइस क्यू क्रॉस क्यू. तो वो क्या बन जाएगा? एक फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि काउंटेबल सेट है. एंड दैट मीन्स यस एन इज काउंटेबल फॉर एनी नेचुरल नंबर्स. यस एन इज काउंटेबल फॉर एनी नेचुरल नंबर्स, एंड देयरफॉर countable union of yes n will be again a countable set, and therefore our yes will be a countable set. So the correct option is yes will be our countable sets. Okay, so thank you so much. Please subscribe our channel, and happy learning. Thank you.